Hi, hello. हाय। This is Sikin. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। That's so good. Good. Glad to hear that. Cool. So, okay. Let me introduce myself first. Okay. ओके। So I am Anuradha Jha, and today I will be your business buddy. Okay. ओके। And trust me, this won't be like your regular class. We are going to have so much fun. This will be an interactive session. You won't have any homework to do. Okay. Because I know थोड़ा ये हो जाता है स्कूल जाने वापस पढ़ाई अरे नहीं बाबा this is going to be very interesting session okay that you are going to enjoy. I will just give my 100%. Okay, ओके। so that I will entertain you in this class, that is for sure. Okay. That's good. So I have introduced myself, right? I'm Anuradha Jha, and I will be your business buddy for today's class, which is going to be Junior MBA, right? So I will just warmly welcome you for this session today. Cool. And Yeah, I want to know about you too. What you are doing? What's your how many members are there in your family? What you love to do? So yeah, please sure. introduce yourself. Yeah, sure. So, I'm Aisha Madana, and I just got my ninth over, and this year I'll be studying in 10th, and I have 7 family members, and there are my grandparents, parents, and my siblings, and yes, I study in Center Point School. Cool. That's all. And how many siblings do you have here? Like you said, right? Four members, like your, no, there Yeah, will be adults, right? Your grandfather, grandmother, mother, and father, right? And then yeah, you, then two more siblings you do have. yes, yes. Who are they? Can you please just give me a little info about them? Yeah, so I'm the middle child, and I have an elder sister, and I have my younger brother. My elder sister's name is Reha Mandana, and my younger brother's name is Devansh Mandana. Wow, Devansh, Yeah, that's so Devansh. cute. And what they are doing? Like you are in ninth, right? And then what's your elder sister is doing, and what your younger brother is doing? My sister now is giving her 11th final exam, and she is doing NEET. And my brother is studying in sixth standard. That's so good. I think you're probably enjoying and staying with your family, right? झगड़ा करते हो अपने भाई से? कभी कभार। अच्छा चलो क्योंकि मेरी तो भाई मेरे भाई से बहुत झगड़ा होती है और हम दोनों तो एक दूसरे को पीट देते हैं प्रॉब्ली बट वही जीतता है हम नहीं जीत पाते हैं उससे चलो बढ़िया है देन लेट्स गो टू द क्लास and one important question that I have for you is what you love to do, what is your interest, what is your hobbies that you will do. I like to play cricket and to watch cricket. I am a cricket fan. मैन वो आईपीएल कौन सी टीम आरसीबी या क्या चेन्नई किंग्स RCB. RCB. चलो बढ़िया है तब तो विराट कोहली की आप बहुत डाई हार्ड फैन होंगी हाँ हाँ हाँ। चलो चलो बहुत बढ़िया है then I do like विराट कोहली as well but my favorite team player is Chennai Super Kings. मैं डाई हार्ड क्योंकि I am also from Chennai, so I do like चेन्नई सुपर किंग धोनी भाई धोनी को कोई बीट नहीं कर हाँ सकता चलो ठीक है प्लीज लेट मी नो आई विल शेयर माय स्क्रीन ओके and yeah, do let me know if you are able to see my screen. yeah, sure. Just give me a second. Mm-mm. So this is what it is. I will be giving you. Yeah. So do you know exactly why we are here today? Any idea?
Yes. I think today's class is going to be about business and all. Like, particularly what is business? About everything about business. Absolutely right. Correct. I won't say it's everything is totally about business, but I would love to let you know that here in this session, we are going to enjoy a lot where we will be seeing a lot of things that will give you a total different experience all over. Okay. Okay. And yeah, also, can you able to see my screen that I'm presenting here? Yeah. I Cool, can even see. cool. Then just let me go. Yeah. So I do have a simple question for you, and I would like to know from you that what is the most powerful skill in today's world? दुनिया में सबसे powerful skill क्या है आपके हिसाब से? नॉलेज मेरे हिसाब से. Wow. और ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मतलब नॉलेज से अगर मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है नॉलेज पे, तो आगे जाके इंसान कुछ बन सकता है एंड देन ही कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. तो चलो बढ़िया. Correct. So yes, it's a very important thing to possess knowledge to gain something in our future so that we can prove ourselves, right? But apart from that, there are certain things that we can depend upon. If considering in this today's world, in this decade, in this 21st century, knowledge only doesn't help us with anything. Okay, we need money, we need technology. Because if we are just sitting in home, we can't do anything. We need several kinds of technology. We need to keep updated ourselves as per the latest trend. Okay, and then hard work प्लस स्मार्ट थिंकिंग. ओके, आप 70s की जमाने की सोच के अभी काम नहीं कर सकते हो, राइट? जैसी अभी ट्रेंड चल रही है, जैसा काम चल रहा है, आपको उस तरह से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा उस एनवायरनमेंट में, राइट? So these are the major skills that you need to develop within yourself. Okay, first we need money and the knowledge where we are going and what exactly we need. For that we need to be pretty much very clear. ठीक है ना? And then the next one is, and that's what we are here today, so that we will let you know, and I will tell you that the 4 things that I have mentioned in the previous slide, right? That is here. What exactly most powerful skill today is in this world? We can just cut short it to a simple thing, that is business. In business, we will get all these things combined, and for business, everything will come under as an entrepreneur. A person who does business is called as entrepreneur, right? Yeah. So he will be leading, he will be having money, he will be having the knowledge. With the help of technology, hard work plus smart thinking, he will be leading the world. Okay? Yeah. Cool. So this is what I was telling. So combining all those things, it will come as entrepreneurs. Okay, entrepreneurial thinking. Okay, we need to think as a owner or leader who wants to do something new in his field. So for that, we need to first create. See, अगर कोई business करना होता है ना, the simple funda is to solve a problem, right? उसका जो solution मिलेगा, अगर आप अच्छा कर रहे हो, लोगों को वो पसंद आ रहा है, and if they are ready to pay, then obviously it will go ahead and we will get paid, correct? And for that, these are many things that we will see. And just आप दुकान खोल लो, वैसे से आपका कुछ होने नहीं वाला. There are certain other things that you need to do in business, okay? So the main thing here is that has been stated here. First one is प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट. ठीक है ना? जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है वो आपको ढूंढना पड़ेगा. एंड सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढने से नहीं होता है, वो प्रॉब्लम है नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपको ग्रास्प करनी पड़ेगी. यस, यही मेरा मौका है, आई नीड टू अचीव. जैसे अभी आपने 9th क्लियर किया है, राइट? And you are stepping into a totally new world. That is 10, that is very crucial for your career.
right? From Yeah. this, you will move forward to different segregation. You will be having lot of opportunities, right? And in that opportunity, you need to grasp. अगर आपको साइंस फील्ड में जाना है तो साइंस फील्ड में, अकाउंटेंसी चूज करनी है तो अकाउंट्स फील्ड में, कॉमर्स, आर्ट्स, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, राइट? एंड these are the things that you are going to think. Okay, and apart from that, creation value, ठीक है ना? क्रिएशन ऑफ वैल्यू मतलब एक कोई काम कर रहे हो आप तो उसकी आप कितनी अहमियत बढ़ा रहे हो आप, ठीक है ना? हाँ, आया, काम किया, चले गए, this is not going to happen. You need to prove yourself. You need to stand a way out from others what they are doing. Cool? You're getting my point? Okay. Yeah. Just ask a simple question. अभी तक आप 9th स्टैंडर्ड क्लियर किया, वेरी गुड, टेंशन फ्री हो गए आप. सो लेट्स हैव अ इंटरैक्टिव एंड फन सेशन. अभी की टाइम पीरियड में आपने बिजनेस देखा होगा, राइट? जितने भी आपकी नॉलेज है अभी तक की, सबसे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है? मीन जब बिजनेस की व्यू में जैसे आपने देखा हो, या कैसे कैसे बिजनेस आपने नोटिस किया अभी के लाइफ पीरियड में? बिजनेस मतलब मैंने तो अभी इतना ज्यादा देखा नहीं है बिजनेस के बारे में, पर जैसे स्टॉक मार्केट हो गया एंड बाकी का जो मतलब ये व्हाट टू से, मतलब That's no problem. आप छोटी छोटी बातें भी बता सकते हो. लाइक समर टाइम में जो लोग पैसे कमाने के लिए छोटी छोटी स्टॉल्स रखते हैं नींबू पानी का, या फिर आइसक्रीम सेल्स करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी, समर टाइम में आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ आइसक्रीम्स. आइसक्रीम के बिना मेरी तो दिन चलती नहीं है. मुझे गर्मी की सीजन में एटलीस्ट 2 times आइसक्रीम चाहिए. सो दैट या एंड वही टाइम होते हैं जहाँ पे रात में वो आइसक्रीम वाले जो भैया होते हैं पूरे गली में घूमते हैं अपनी वो बेल बजा के कि मैं आया हूँ, आओ भाई आके ले लो. सो these are the things that they are. He is also an entrepreneur. It doesn't mean he is doing a small business. He is doing a business, but he does know what he wants to do, right? मेरे को गर्मी में आइसक्रीम चाहिए, राइट? गर्मी लग रही है, मेरे को आइसक्रीम चाहिए. आई डोंट नो वो अंदर जाके क्या करते हैं, बट मुझे आइसक्रीम चाहिए. और मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास है, क्योंकि वो ऑलरेडी आइसक्रीम लेके बेच रहे हैं, करेक्ट, ऑल ओवर द स्ट्रीट, और जहाँ पे भी उनका वो नेटवर्क हो या जहाँ पे भी वो सेल कर रहे हो, जिस एरिया में भी. एंड ही इज ग्रास्पिंग इट. समर टाइम में आइसक्रीम चलती है, ट्रस्ट मी, बहुत चलती है. आप खाते हो आइसक्रीम समर टाइम में? यस यस. सो यस, दैट्स व्हाट ही डज. कितने, और यही नहीं, वो सिर्फ वेनिला चॉकलेट वैसे नहीं, बहुत सारी फ्लेवर्स आजकल इंक्लूड करना शुरू करते हैं नॉर्मल स्ट्रीट वेंडर्स भी, ठीक है ना? और स्पेशली वो जो कुल्फी रहता है वो बहुत ही ज्यादा फेमस रहता है उनका. So they are going to charge for that. And why उन्होंने अपॉर्चुनिटी लिया गर्मी के टाइम में मुझे आइसक्रीम सेल्स करना, क्योंकि उसकी प्रॉफिट ज्यादा रहती है, सेल्स भी ज्यादा रहते हैं, एंड उसकी टेस्ट भी अच्छी रहती है. क्योंकि टेस्ट अच्छी नहीं रहेगी तो कोई लेगा नहीं, राइट? तो उन्होंने अपनी वैल्यू भी बना के रखी है कि भाई मैंने बहुत अच्छा माल बेच रहा हूँ या रही हूँ, इतना पैसा लगेगा, भले ही थोड़ा वो कॉस्टली हो, but their quality and goods is very much, their goodwill in the street is very good. First day वो आएंगे, सेल करेंगे, हमें पता चलेगा, तो obviously second day भी हम उन्हीं के पास लेने वाले हैं, correct? So they are building the trust. With how they are building trust? क्योंकि उन्होंने अपना, हम लोगों का भरोसा जीता है उन्होंने अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से, राइट? So these are the things that is coming up. Okay, ये छोटी छोटी बिजनेसेस है. बड़े बड़े बिजनेस भी बहुत सारे होते हैं, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू अबाउट स्मॉल काइंड ऑफ बिजनेस दैट यू सी इन योर रेगुलर डे टू डे लाइफ. ओके, अब बिजनेस डजंट मीन लाइक वो करोड़ों से ही शुरू होगा. छोटे छोटे बिजनेसेस भी होते हैं जहाँ से लोग रियली अर्न अ लॉट. आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, एक छोटू सी आइसक्रीम सेलर भी लाखों में कमाते हैं. पानी पूरी वाले लोग एक दिन में 40,000 से 60,000 तक कमाते हैं. इनफैक्ट अगर उनका वो एरिया अच्छा रहा जहाँ पे भी उन्होंने स्टॉल लगाए, they can earn up to 1 lakh as well. और उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ज्यादा नहीं होता है, समवेयर अराउंड 5,000 मैक्स 10,000 लगा होगा उनका वो जो भी प्रोडक्ट्स है, या उन जो रेंट एंड ऑल वो दे रहे हैं. सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. इट डजंट मीन कि आप बहुत बड़ा ये बिजनेस खोलो, छोटू भी बिजनेस रहती है. बिजनेस इज अ बिजनेस दैट एनीथिंग यू डू व्हिच इज यूजफुल टू पीपल, दैट इज गोइंग टू get you paid.
ओके। हाँ हाँ आप बता सकते हो आप छोटी छोटी चीजें जो आपने देखा हो जो आपको लग रहा है कि हाँ बिजनेस है? हाँ हाँ। अब जैसे जो डे डे टू डे वाली नीड्स में जैसे हो जाते हैं वेजिटेबल सेलर्स या फ्रूट सेलर्स, वो जो पूरा अपने ठेले पे लगा के वैसा बैठते हैं। एंड जैसे कोई ज्वेलरीज की शॉप हो गई या कोई क्लोथ्स की। एंड मॉल्स में और अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है, ग्रोसरीज का हो गया या कुछ भी, मतलब। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा किया आपने, रियली। एंड यू नो, यू सेड यू लाइक क्रिकेट, राइट? यू लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड इवन यू वॉच क्रिकेट, राइट? तो जो मोस्टली आप वर्ल्ड वर्ल्ड मैच देख रहे होगे या फिर आईपीएल देख रहे होगे, आप आईपीएल के वक्त भी ऑक्शनिंग होता है, राइट? डू यू नो अबाउट दैट? So हाँ हाँ that is also a kind of business because they are earning something by playing, right? भले ही हम लोगों के players जो हम लोग die hard fan है, हम लोग यूं ही देखते हैं उनको, but they are getting paid, they are earning something from playing, right? So yeah this is their passion, this is the opportunity that they choose, right? To make a name on them. So विराट कोहली, धोनी, सूर्य कुमार यादव, उन सभी का एक एक नाम है, एक एक वैल्यू क्रिएट करके रखा है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, राइट? सो दिस हाँ इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। एंड दे आर नॉट ओनली हियर, क्योंकि विराट कोहली ने बहुत सारी जगहों पे अपनी रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी अलग अलग चीजें भी उन्होंने किया है, राइट? अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट. So that's same. what my saying is, for having an entrepreneurial mindset, to think like them, the first thing is we need to have a problem solving mindset. Okay, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कैसे हम अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रास्प कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन हुआ, तो मैं क्या करूं जो मुझे फायदा होगा। ओके, एंड हाँ वो इस तरीके से करना है जो हम लोगों की वैल्यू बढ़ाए, उनको लगे कि वाह अरिशा, आपने कितना अच्छा किया है, मुझे बस नेक्स्ट टाइम आपके पास ही आना है। लाइक दैट वी नीड टू मेक आवरसेल्फ वेरी मच बेटर। ठीक है ना? अच्छा। हाँ मैम, देखिए, ये एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब ये प्रॉब्लम का मुझे समझा नहीं, मतलब बिजनेस में कैसी प्रॉब्लम वैसा, मतलब जैसे एग्जाम्पल। मैंने अभी आपको बताया ना वो आइसक्रीम वाले का स्टोरी, हाँ you हाँ also just interlink in that, गर्मी के टाइम में मुझे आइसक्रीम खानी है या प्यास सी लगती है, राइट? हाँ हर जगह पे जो लोग लेमनेड की स्टॉल्स डालते हैं या आइसक्रीम बेचते हैं, राइट? सो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ, राइट? गर्मी के टाइम में नींबू पानी बेचना या फिर आइसक्रीम्स की स्टॉल लगा के बेचना, वो हाँ सब वही प्रॉब्लम है। गर्मी के टाइम में हम लोगों को नॉर्मली बहुत पसीने आते हैं, प्यास लगती है, कुछ ठंडा खाने का मन करता है, राइट? गर्मी हाँ का टाइम इज अ प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कैसे करना है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी कैसे लिया, या तो नींबू पानी बेचो या फिर ये आइसक्रीम सेल करो, हाँ राइट? आइसक्रीम। और अच्छी क्वालिटी का गुड सेल करके, अच्छी ये में ज्यादा हाई भी प्राइस नहीं है, इबैको या फिर हाई ब्रांडेड में भी ना जाके, ये लोग अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करते, ताकि नेक्स्ट टाइम कस्टमर्स उनके साथ अट्रैक्ट होके अगेन उनसे आके अपनी सामान ले। ओके, अभी आप मोस्टली कहाँ पे जाके अपनी कोई भी नेसेसिटीज की सामान लेते हो, या फिर घर में जो ग्रोसरीज होता है, राइट? हाँ वो हम लोग एक पर्टिकुलर किराना शॉप से लेते हैं, राइट? हाँ क्योंकि हाँ वी ट्रस्ट देम, राइट? हम ये लोगों की जो डेली की रोजमर्रे की जो जरूरतें हैं, उसके लिए एक पर्सन ने ऑलरेडी एक शॉप खोल के रखा है, राइट? मेरे या को सामान चाहिए, सामान लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, उसकी वजह से घर के आसपास में किसी ने शॉप खोल के रखा है, ग्रोसरी शॉप, किराने का स्टोर, A to Z उसमें जो चाहिए वो मिलेगा, जो घर के सामान में यूज होता है। अब मेरे हाँ घर के पास में, तो मैं तो उन्हीं से जाके लूंगी, राइट? और हाँ ट्रस्ट मी, अगर उनका गुड्स अच्छा रहा, मैंने उन पे एक बार भरोसा कर लिया ना, दैट्स इट, आई एम गोइंग टू गो देयर ओनली। अगर वो बस मुझे पसंद आ गया कि वो वही है, मुझे उन्हीं से लेना है, तो बस हम लोग वहीं से लेने वाले हैं। आई एम श्योर आपके घर में भी वैसे ही होता होगा, राइट? हाँ किराने की जो भी सामान है, या तो कहाँ से आप लेते हो मोस्टली?
एक वो घर के पास में है, जैसे मतलब बेसिक नेसेसिटीज जो खाने के लिए खत्म हो जाए हो, या कुछ सब्जी का मसाला हो, एकदम घर के पास में ही है वो। करेक्ट। सो अगर वहां पे अच्छा मिलता है या जाने पहचाने लोग है, उन पे भरोसा करते हैं, तो वी विल जस्ट गो एंड बाय इट आउट, राइट? हाँ तो वही हम आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बस एक आप समझ में आया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपॉर्चुनिटी हाँ कैसे ग्रास्प करना होता है। बस बहुत बेसिक फंड है। आप डेली की जिंदगी में ना छोटी छोटी बातों पे अगर देखोगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी कि लोगों ने अपनी बिजनेस कैसे सेटअप किया है। कहीं एक जगह पे देखिएगा ना, पानी पूरी की स्टॉल पे बहुत आप खाते हो पानी पूरी? हाँ हाँ तो कोई कोई जगह पे ना लोग नहीं जाते हैं क्योंकि वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, हाँ उनका क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है। बट कई कई जहाँ पे हाइजीन भी मेंटेन करते हैं, जिनका क्वालिटी भी अच्छा रहता है पानी पूरी का, क्योंकि इवनिंग टाइम में वो लोग बेचते हैं, राइट? स्कूल से बच्चे निकलते होंगे, स्कूल के पास में रहते होंगे, राइट? आपके स्कूल के पास में हाँ दैट्स व्हाट हियर इज। बच्चे भूखे रहते होंगे, निकलना होगा, उनको स्कूल से छोड़ते होंगे, घर में बाहर ही लगा हुआ है पानी पूरी का स्टॉल। दैट्स इट, जाओ पैसे दो, खरीदो, खाओ और निकलो घर के लिए। अ काइंड ऑफ स्नैक हो गया, राइट? वो और लगता है कि हाँ चलो हम लोगों ने कुछ खाया, तो वैसी वाली फीलिंग आती है। एंड दे आर अर्निंग अ लॉट फ्रॉम योर मनी एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग टू ईट समथिंग। हाँ अब समझ में आ रहा है ये कैसे ये एग्जैक्ट हाँ मैच होता है? हाँ चलो, cool. Here, the main thing is, बिजनेस क्या होती है? बिजनेस बस एक शॉप खोल के रखने से बिजनेस नहीं हो जाता है, ठीक है ना? जहाँ पे आप ऐसे देख रहे हो, कुछ भी रख दो, आके लेंगे, सेल कर देंगे, पैसे आ जाएंगे। नो, अगर आपका गुड अच्छा हुआ, जो प्रोडक्ट आप सेल्स कर रहे हो वो अच्छा हुआ, तो ही हम आपके पास आ सकते हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सी, अभी एप्पल एंड ऑल, वो जो आईफोन चल रही है, राइट? है हाँ। घर में किसी के पास क्या मैम? आईफोन? है घर में, आपके घर में? हाँ हाँ है। तो वही एप्पल का जो ब्रांड है, आईफोन में बहुत ही बड़ा ब्रांड है, राइट? हाँ हाँ और उन्होंने अपनी वैल्यू उतनी बना के रखी है। आईफोन मीन्स एप्पल, राइट? यस। उसके अलावा हम लोग और कुछ देखते ही नहीं है। अगर हाँ हमारे पास वो बजट है और एंड्रॉइड एंड आईफोन में जाना हो, तो वी विल ऑब्वियसली चूज आईफोन, राइट? हम लोग ये एंड्रॉइड फोन नहीं चूज करने वाले, चाहे उसका ब्रांड कितना ही अच्छा क्यों ना हो, सैमसंग हो या ओप्पो हो, कितना भी हो। बट एप्पल के सामने उनका एंड्रॉइड फोन का उतना चलता नहीं है, राइट? हाँ हाँ दिस इज व्हाट हियर बिजनेस कम्स इन। उनका जो वैल्यू उन्होंने क्रिएट करके रखा है ना, टेक्नोलॉजी की टर्म से या कुछ और वजह से, उनका ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है, राइट? हाँ। इसकी वजह से वी आर गोइंग एंड इन्वेस्टिंग आवर मनी इन दैट सो दैट वी विल गेट समथिंग। या सो यू गॉट माय पॉइंट हियर, राइट? बिजनेस जस्ट शॉप खोलने से नहीं होने वाला है, यू नीड टू डू अ लॉट मोर देन दैट। हाँ गॉट इट। Okay. So the first point that we are going to have in business creation, let's say it will be a rule, okay, to do a business. First one will be, just a second, value creation. Let's see, क्या क्या हो सकता है वैल्यू क्रिएशन? कोई आइडिया है आपके पास? वैल्यू क्रिएट। एक सेकंड। कोई नहीं, just take your time. I'm here. Today I'm for you here. I will be your friend. I will be your buddy. So you can ask me anything. हम कुछ आपको जज नहीं करने वाले हैं. Yeah. So you can take your time. कुछ नहीं नहीं, सॉरी। No, no, that's okay. मैम आप ही बता दो। कोई बात नहीं। सी, वैल्यू क्रिएशन का मतलब ये है कि कोई सर्विस हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको भूख लगी है, आपने जोमैटो, घर में खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, टुडे यू आर गोइंग टू बी अ लेजी पर्सन, ओके, यू डोंट वांट टू कुक एनीथिंग, यू आर गोइंग टू ऑर्डर फूड फ्रॉम एनी एप्लीकेशन, देयर आर सेवरल, राइट? आजकल तो जेप्टो में भी स्नैक्स एंड ऑल हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी आ गया कैफे का। एंड जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, सो यू आर जस्ट गोइंग टू ऑर्डर फूड एंड एंजॉय।
उसका पीछे का प्रोसेस क्या है हमें पता नहीं, हमने अपने पैसे दिए, खाना आ गया, मैं अपने आप को एंजॉय कर रही हूँ, एंड वो भी ऐसे वैसा खाना नहीं, जिस होटल से आपको चाहिए, जहां से भी आपको लगता है कि यहाँ पे बेस्ट खाना मिलता है, वहां से आप ऑर्डर करने वाले हो, राइट। हाँ इसकी वजह से क्या होता है, आपकी टाइमिंग सेव होती है, राइट। घर बैठे बैठे आपको बाकी का काम है तो वो भी कर सकते हो आप, खाना हाँ बनाने की भी जरूरत नहीं है, एंड आपको फायदे मिल रहे हैं, वो टाइम जो बचत हो रही है वो आप कुछ और में कर सकते हो, एंड यू आर कन्वीनियंट। चलो ठीक है, खाना आ जाएगा, मैंने ऑर्डर कर दिया है, पैसे पे कर दिए है, राइट। सो हाँ दिस इज व्हाट वैल्यू क्रिएशन इज, देयर इज ऑलरेडी समथिंग which is doing something for us, right? हाँ See, I do have a question for you. अगर कोई कंपनी, ठीक है ना, आपकी लाइफ आसान बना दे या कुछ ऐसा करे जिससे आपकी लाइफ आके स्मूथली चले, आप उसको पैसे दोगे? हाँ मतलब क्योंकि क्योंकि मतलब वो कंपनी ने मतलब मेरी लाइफ इजियर कर दिए, एकदम इजी गोइंग अब चल रही है लाइफ, एंड इसीलिए मतलब उसे पैसे दूंगी मैं। वेरी अगर गुड। मेरे पास इतना बजट होगा भी तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। चलो ठीक है, आपके पास बजट है, ठीक है ना, आप ऐसी कौन सी कंपनी को अपने पैसे देना चाहोगे? um, अभी तक कोई ऐसी जैसे प्रोडक्ट जो आपने यूज किया है जिससे आपकी लाइफ आसान हुआ है? मैम एग्जाम्पल वो रिलायंस कंपनी, मतलब पूरा वो ग्रोसरीज है या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, और कुछ भी जो बेसिक नेसेसिटीज डेली नीड्स है, तो उससे मतलब इजी किया ही है उन्होंने। और फिर हाँ, इसीलिए अब उसके लिए तो पे बैक करना ही पड़ेगा ना। ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू, करेक्ट। कोई भी आजकल बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। हमें पैसे ही पे करने पड़ते हैं। दैट्स सो गुड, रियली आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने सच में बहुत अच्छी तरीके से इसको लिया है, जैसे आपने बताया, राइट, और रियल लाइफ एग्जांपल दिया है आपने कि किस तरीके से आपका लाइफ इजी बना है रिलायंस की वजह से, एंड यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर देम, राइट। हाँ and you said right starting में कि हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं, एग्जैक्टली वी विल गो इन डेप्थ, ठीक है ना, कि एग्जैक्टली क्या होता है अभी के आजकल के ट्रेंड्स में जो हो रहा है, वी आर जस्ट गोइंग टू गो थ्रू विद दैट एंड रिलेट कि ये हम लोगों से कितना रिलेट कर रहा है, ओके। हाँ द फर्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, राइट, कि हमें ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कैसी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी को, जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करते हैं। लाइक ओला, ओला हाँ आपकी बहुत ही बड़ा कैब्स का ब्रांड है, राइट। जस्ट अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो या आपको गाड़ी नहीं है आपके पास या कुछ हुआ है गाड़ी को, यू जस्ट ओपन योर द एप्लीकेशन, बुक अ कैब, ऑटो या बाइक, जो भी चाहिए आपको बुक करो, एंड देन दैट्स इट। वो 5-10 मिनट में आपके पास आ जाएगा और आपको जहाँ पे जाना है वो डेस्टिनेशन पे छोड़ देगा। इट इज सेफेस्ट वन, राइट। वो ट्रैकिंग वगैरह की एप्लीकेशंस भी है, किसी को आपको लाइव स्टेटस शेयर करना है देन ऑल्सो यू कैन डू। एंड ट्रैफिक में फंसे हो, आपको अकेले जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कार पूलिंग भी आप कर सकते हो, एक साथ जो कार शेयरिंग होता है ना, उससे हाँ आपकी पैसे भी बचत होते हैं, एंड फ्यूल भी, एनवायरमेंट भी थोड़ा अच्छा रहता है ना, अगर लोग एक ही जगह पे जा रहे हैं, एक ही जगह से। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट। सो वी नीड टू कीप आवर पर्सपेक्टिव ब्रॉडर एंड थिंक इन दैट जोन, ओके। एंड जैसे एक ये ओला हो गया, देन देयर आर several other platforms as well, like Rapido हो गया, Uber हो गया, करेक्ट। एंड अगर ये और ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो गया, राइट। अगर हम लोग होटल्स एंड ऑल के बारे में आप नए हो शहर में, या अभी आप कहाँ पे रहते हो अरीशा? मैम मैं नागपुर महाराष्ट्र में Cool. सेंट्रल। तो नागपुर महाराष्ट्र में हो आप, आपको कहीं ट्रिपिंग के लिए आप समझ लो केरला आ रहे हो, ओके।
वहां पे आपको किसी को पता नहीं है, लैंग्वेज पता नहीं है, बट ओयो करके एक होटल बुकिंग ये है, राइट? आजकल तो हाँ बहुत मेक माई ट्रिप बहुत सारे ये, बट ओयो आके बहुत ही स्पेसिफाइड ये जो होटल फील्ड्स में काम करता है, राइट? तो उसमें आप अपनी बुक अपनी नेसेसिटी के हिसाब से बुक करके आराम से रह सकते हो। वो पर्सन हिंदी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सो यू डोंट हैव टू have a problem with the language, right? If you're going to Kerala from Maharashtra. So these are the things that from a problem, they are creating an opportunity to build business, to earn money. That's what entrepreneurs thinks. So ठीक है ना, तो एक जो entrepreneur है उनकी thinking ही ऐसी होती है जब वो लोग उस प्रॉब्लम को टोटली अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से वो एक आइडिया जनरेट करते हैं और उससे वो अपने को इनकम अर्न करने की फायदा सोचते हैं, ठीक है ना? हाँ So do you have any doubts here in this opportunity thinking slide? no. So shall we go to the second one? Yeah, sure. So market size. I hope you do know about Amazon, right? Yes. Yeah. So it is a very huge platform, right? ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेजोन का काम चलता है, करेक्ट? तो Yeah. ऐसी बिग ऑनलाइन शॉपिंग, इट इज नॉट समथिंग वेरी स्मॉल, क्योंकि ट्रस्ट मी, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो करोड़ों में है, नॉट अ सिंगल पर्सन, नॉट थाउजेंड, इट इज इन क्रोर्स, राइट? Every single person nowadays uses the online platform. कुछ भी करो अमेजोन से ले लो। अरे आजकल तो सब्जी वगैरह भी अमेजोन से मिलना शुरू हो गए, कुछ भी चाहिए नेक्स्ट डे तक आपको ऑर्डर मिल जाता है, करेक्ट? या जेप्टो ही रख लीजिए, जेप्टो तो और कन्वीनियंट हो गया है। जेप्टो भी हर, भले ही कोई कोई इलाके में अभी तक वो नहीं आया है जेप्टो, बट ऑल ओवर द इंडिया इट इज गोइंग ऑन ट्रेंड। अगर जेप्टो में आप डालो तो उसमें भी सब कुछ आजकल मिलने लगे। पहले वेजीज से शुरू हुआ था, बट ग्रेजुअली दे आर इंक्रीजिंग अ लॉट, राइट? थोड़े Yeah. थोड़े थोड़े करके सभी चीजें वो लोग ऐड करते जा रहे हैं। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अमेजोन, दे प्रोडक्ट्स वो ऑल ओवर इंडिया की जो वेंडर्स है सभी लोगों से कनेक्ट करते हैं। सभी लोग अमेजोन के पास आते हैं, मेरे पास भाई ये प्रोडक्ट है, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ, मैं आपको इतना अमाउंट पे करूंगा, मेरे को ये सब्सक्रिप्शन चाहिए एंड आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट, राइट? एंड हम लोग जो कस्टमर्स हैं, हमको जो चाहिए, ड्रेस चाहिए आपको या जो भी हो, A to Z अमेजोन में मिलता है। तो Yes. आप अपने इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप ऑर्डर करो, यू आर गोइंग टू पे फॉर दैट एंड देन दैट्स इट, यू विल गेट दैट प्रोडक्ट इन योर होम। आपको जाके लाने की भी जरूरत नहीं, डिलीवरी भी आपके घर तक आके कर देते हैं वो लोग, राइट? दिस इज वेरी मेजर बिग ब्रांड एंड इनकी मार्केट साइज भी बहुत बड़ी है, इसकी वजह से इनकी प्रॉफिट भी अनइमेजिनेबल है, ठीक है ना? अब मैं आपसे एक छोटी सी क्वेश्चन पूछने वाले हूँ। अगर मेरी एक छोटी सी कंपनी है जिसका सिर्फ 50 कस्टमर में सिर्फ 50 कस्टमर्स है, आपको क्या लगता है वो बिजनेस चलेगा? मैम मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा। मतलब अभी के लिए 50 पीपल होना मतलब सही है, पर आगे जाके और ग्रोथ करनी है तो वो उसे बिजनेस को और एक्सपांड करना होगा ताकि वो और लोग तक पहुंचे और वो अच्छे से एक्सपांड हो पाए। करेक्ट। सो दैट्स व्हाट, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है उनको, राइट? क्योंकि वो सिर्फ 50 कस्टमर्स पे हमेशा ट्रस्ट करके नहीं बैठे रह सकते, उससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ 50 से ज्यादा उनकी वो कस्टमर्स बढ़ेंगे ही नहीं, तो वो बिजनेस और क्या कर सकते हैं, राइट? यस तो हाउ मच द बिग मार्केट इज, अगर उनका मार्केट बड़ा है देन ऑब्वियसली बहुत अच्छा चलेगा उनका, वैसे उनका आइडिया भी बड़ा होना चाहिए, ओके? क्योंकि या ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसी चीज है जो इंडिया के हर एक जगह पे जाती है, राइट? यस इवन आजकल तो वो ट्रेंड भी आ गया है कि आप विदेश से भी कुछ चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो, राइट? हाँ जस्ट आपको अपना एड्रेस एंड पिन कोड एग्जैक्टली देना है एंड यू नीड, बट फॉर दैट दे आर आस्किंग फॉर प्री पेमेंट, राइट? सम अमाउंट वो प्री पेमेंट एज अ लेजर के लिए मांगते हैं कि नहीं मुझे चाहिए करके, बट
चल रहा है, अभी भी ये ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन अभी इंडिया के लोग उतना उस प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट नहीं कर रहे जितना अमेजोन को कर रहे हैं, क्योंकि हाँ इट इज अ वेरी मच ट्रस्टेड ब्रांड। इन्होंने जो अपना वैल्यू क्रिएट किया है अपना, हाँ दैट इज अनबीटेबल, राइट? अमेजोन जाओ, अमेजोन में जाओ, जो चाहिए वो ऑर्डर करो, आपके घर के पास आ जाएगा। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी सच में बहुत ही रिलायबल कर दिया है, बहुत आसान कर दिया है, राइट? सो अगर छोटी मार्केट रही तो यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन इट, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं। हाँ It's a bigger market. Market size matters a lot while doing a business. Okay. अगर जस्ट छोटा सा एक ये ले लीजिए, ठंडी के मौसम में कोई आके आइसक्रीम बेचेगा तो कोई लेने वाला है? नहीं मैम, नहीं, नहीं। ठंड के मौसम तो नहीं। करेक्ट, ठंड सीजन भी मैटर करते हैं, राइट? आप सीजन देखिए, या फिर कोई बूढ़े लोग या बीमार बच्चों को जब हॉस्पिटल के सामने जाके आइसक्रीम लोगे तो कोई लेगा क्या? बेचोगे तो? या पिज्जा बर्गर लेने वाला है? नो, राइट? दैट्स व्हाट। सो एवरीथिंग डिपेंड्स। आप ऐसे वैसे कुछ नहीं कर सकते हो, इट शुड बी इन अ वेरी प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ओके, यस। cool. So let's go to the next one. It is very important, unique value. ठीक है ना? Why do people choose you? अमेजोन को क्यों चूज करते हैं? क्योंकि उस पे वो ट्रस्ट करते हैं, राइट? बट ये जो फ्लिपकार्ट है ना, इट्स एन अनदर, इनका एक अलग ही पहचान है, जैसे अमेजोन का है ऑनलाइन शॉपिंग में। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड, राइट? फ्लिपकार्ट से भी लोग A to Z सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ एंड इसका एक और ऑप्शन है जो कन्वीनियंट है, वो है कैश ऑन डिलीवरी। आपके पास हाथ में सामान आ जाएगा ना, उसके बाद आप पे करो। स्पेशली Amazon ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज फेमस, ओके अरीशा, बट फ्लिपकार्ट ये अपनी कैश ऑन डिलीवरी की वजह से ना इंडिया में वन ऑफ द बेस्टेस्ट और टॉप ऑफ सेलिंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन शॉपिंग का, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग ना, मतलब इंडियंस बहुत सोचते हैं पैसा खर्च करने में, ठीक है ना? मेरे को सामान दो तब मैं पैसे पे करने वाली हूँ, वरना मैं नहीं करने वाली, तुम्हें जो करना है करो। वैसे हैं हम लोग, ठीक है ना? मेरे पास सामान आएगा तो ही मैं पे करने वाली हूँ। हम लोगों की माइंडसेट वैसी होती है। अगर हम लोग अभी के जनरेशन, आप लोग थोड़ा चेंज भी हो जाओ, बट जो पास्ट जनरेशन वाले लोग होते हैं ना, दादा दादी या फिर मम्मी पापा, वो लोग भी थोड़ी सोचते हैं, नहीं मुझे सामान आएगा तो ही मैं पे करूंगी, क्या पता वो लोग स्कैम करके चला जाए, राइट? So that's why they are intercepted a unique way to get the business going on in India, so that they have introduced a new option as cash on delivery option. आप सामान ले लो, उसके बाद पैसे दे दो, ठीक है ना? So this is their unique value. Just in case, अभी हम लोग ये MBA का क्लास अटेंड कर रहे हैं, right? You will be our junior MBA. You will be someday creating a new idea, right? आप हो सकता है तो फ्यूचर में बिजनेस भी ओपन करोगे अपना खुद का। तो आपको क्या लगता है, आप ऐसी कौन सी यूनिक वैल्यू क्रिएट करोगे जो हेल्प करेगा लोगों को? ऐसे चलेगा? हाँ, I'm just thinking. हाँ, प्लीज टेक योर टाइम। Mom, I have no idea. कोई बात नहीं, हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं। अमूल ब्रांड सुने हैं अपनी? हाँ। उनकी यूनिकनेस क्या है? मैम की वो फ्रेश प्रोडक्ट्स बेचते हैं, फ्रेश मतलब डेयरी। करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट। डेयरी में ना उनका बहुत ही बड़ा वैल्यू है, क्योंकि वो उनका एक अलग ही स्लोगन है, राइट? वो चाहते हैं कि ये हर लोगों को पहुंचे, अफोर्डेबल रेट में हो, प्लस फ्रेश चीजें हो उनके पास। So they do have a very good reputation, a very good value in this dairy products, right? कुछ भी चाहिए, और उनके पास इतनी वेराइटीज भी है ना अमूल के पास, दैट आंखें बंद करके हम लोग अमूल को चूज कर सकते हैं। ओके, so this is what we are going to represent in your
what do we say, business as well. अब कुछ आइडिया आया कि एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू को कैसे हम लोग और सीखते हैं, द टेस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, राइट, अमूल को। हाँ करेक्ट। कोई और तो जी? तो मैम सबसे पहले अगर मुझे अपना मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैं जो पीपल की नीड्स है उसके ऊपर ध्यान दूंगी। जैसे तो मतलब सपोज कोई चीज हायर प्राइस में मिल रही है तो उसको वो सेम ही चीज को थोड़ा लो प्राइस में करके, ताकि उनके लिए कन्वीनियंट हो। अ, या मतलब जैसे ये मतलब फ्री होम डिलीवरी हो गया कोई। अच्छे, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड अरीशा, रियली। चलिए ठीक है, अभी तक तो आपने यूनिक वैल्यू के बारे में भी बोला, राइट। अब चलते हैं रेवेन्यू स्ट्रैटेजी पे, ठीक है ना। रेवेन्यू स्ट्रैटेजी प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि भाई मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे प्रॉफिट चाहिए। मैं ऐसे ही नहीं जाके सेल कर दूंगी, मैं लॉस में नहीं चलने वाली हूँ, मुझे प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो हाँ हम लोग जो स्टार्टअप कंपनीज है, राइट, हम लोगों को मनी चाहिए, अर्न करने के लिए पैसे चाहिए। हम लोग बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स नहीं है कि मिलियंस ऑफ अकाउंट्स आ गया एंड वी आर गोइंग टू गेट पेड, राइट, नो। लाइक पेटीएम वगैरह ही रख लो, वो सब ना आजकल सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, ये सब लोग करके बोलते हैं जिन जिन लोगों को चाहिए। यूट्यूब का ही रख लीजिए आप, यूट्यूब में भी अब प्रीमियम वाली ऑप्शन आ गई है, राइट। अगर आपको एड्स नहीं चाहिए और भी ये चाहिए, ये मिलेगा वो मिलेगा करके प्रीमियम वाला ये ले लिया है। तो सच में कोई कोई लोग उसमें पैसे भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड दैट इज हाउ दे आर अर्निंग, राइट। एंड कुछ हाँ कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा, आप मेरे को पैसे दो इसके लिए, आई एम गोइंग टू चार्ज फॉर दैट, और मैं आपके लिए ये एड बना के दूंगा। या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना यूट्यूब पे, या जो रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, राइट, हाँ वो लोग कभी कभी इंट्रोड्यूस कराते हैं ना उनके बीच में कि ये प्रोडक्ट है, मैं ये लगाती हूँ या ये यूज करती हूँ तो मेरी लाइफ आसान बन जाती है, आपको हाँ ये लेना है तो ये कूपन कोड यूज करो, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस इज ऑल advertisement, for that they are getting paid, okay, from that particular brand. So हाँ this is how revenue strategy works. आप कभी भी किसी के लिए कुछ भी फ्री में नहीं करने वाले हो, you are going to make your own way how to make money, okay. हाँ And especially startups ऐसे ही सब्सक्रिप्शन से, कमीशन लेके, एड्स देके ऐसे कमाते हैं, हाँ ठीक है ना। हाँ ब्रांड पावर, कोई ऐसी ब्रांड जो आप बहुत पसंद करते हो? मैम प्यूमा। ओ माय गॉड, दैट्स सो गुड, चलो अच्छा है बढ़िया है। सो सी, ब्रांड मतलब लोगो नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ प्यूमा का भी जो लोगो होता है, दैट्स नॉट ब्रांड, मतलब ट्रस्ट और इमोशन। आप प्यूमा पे ट्रस्ट करते हो, दैट्स व्हाई यू विल गो अगेन एंड अगेन फॉर योर नीड्स, राइट। अगर हाँ उनकी क्वालिटी कुछ भी हुआ तो यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, यू विल सर्च फॉर देयर ऑल्टरनेटिव, कोई और इससे भी अच्छा ब्रांड है तो मैं वहां पे जाऊंगी, राइट। या तो वैसे ही होता है। मेरे साथ भी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था। मैं स्पेक्स पहनती हूँ, स्पेक्स में ना वो टू मेजर ऑप्शंस थे जो मेरे घर के आसपास था, दैट वन वाज लेंसकार्ट एंड स्पेक्स मेकर्स। हाँ तो लेंसकार्ट में ना मेरे को पर्सनली लगा कि दे आर डूइंग समथिंग दैट इज नॉट कमिंग अप टू माय एक्सपेक्टेशन, तो मैंने स्विच कर दिया। लेंसकार्ट का बहुत अच्छा वैल्यू है, दे आर गिविंग अस अ लॉट ऑफ ऑप्शन, बट मुझे पर्सनली स्पेक्स मेकर्स अच्छा लगा, तो आई हैव गॉन देयर, आई हैव ऑर्डर्ड माय गुड्स देयर। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। मेरे को ब्रांड, मेरे को ना वो जो ट्रस्ट और इमोशन होता है ना, मेरे को लेंसकार्ट की लोगो से नहीं, मुझे वो ट्रस्ट एंड इमोशन मिसिंग लगा लेंसकार्ट में, सो आई हैव मूव फॉरवर्ड विद स्पेक्स मेकर्स। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, ठीक है ना। हम लोग प्रोडक्ट को ऐसे ही नहीं बाय कर लेते हैं, उसमें अगर फील रहती है हाँ मुझे ये अच्छा लगा, मुझे यही चाहिए, तभी हम लोग वहां से लेते हैं, राइट, कोई भी प्रोडक्ट हो। हाँ
तो ऐसी प्रोडक्ट जो आपने अभी रिसेंटली लिया जहाँ पे आपको लगा यस यही है, मुझे यही चाहिए, वो नहीं चाहिए, कोई सिचुएशन आप बता सकते हो? हाँ हाँ। अम, अभी जैसे रिसेंटली एक अभी तो मैंने स्पेक्स का ये लिया। ओके कूल। चलो तब तो बेंच हम दोनों सेम सेम कैटेगरी में हैं। मुझे मेरा स्पेक्स आज मिला नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। ओ, और मुझे आज ही मिला। ओके चलो ठीक है, तो होपफुली मेरा मिल जाएगा जल्दी। हाँ। तो क्या हुआ आपके साथ एग्जैक्टली? मैम मतलब मुझे ये लेंस कार्ट पे मतलब ये बहुत एकदम मेरे लिए तो ऐसा ब्रांड है। मैं बचपन से स्पेक्स पहनती आ रही हूँ और मैंने हमेशा उधर से ही लिया है। तो तब तब से और जैसे मतलब मैं और जैसे एकदम अश्योर भी हो जाती हूँ कि मतलब इतना सबको इसके ऊपर ट्रस्ट भी है एंड इतना ऑल ओवर इंडिया है एंड ओह माय गॉड, मैंने गलत पर्सन को गलत एग्जाम्पल दे दिया। आप लेंस कार्ट यूज करते हो और मैं स्पेक्स मेकर्स, चलो ठीक ही है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फॉर मी इट्स अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस विद लेंस कार्ट एंड यू हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस विद लेंस कार्ट, राइट? मेरे को स्पेक्स मेकर स्टिक लगा, आपको लेंस कार्ट अच्छा लगा। सो दैट्स हाउ एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। दैट्स वे लोगों को देख के नहीं, लोग इमोशंस एंड फीलिंग्स को देख के अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करते, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। हाँ। दैट्स गुड। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी दैट मैंने आपको ऐसे बोला है। प्लीज हाँ। डोंट टेक इट टू योर हार्ट, हाँ? ओके, सो द नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज डिजिटल मार्केटिंग। आजकल इसके बिना कोई बिजनेस चलता ही नहीं है, ठीक है ना? एवरीथिंग आपको वो व्हाट्सएप, आजकल तो व्हाट्सएप में भी एड्स होना शुरू हो गए। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में उसके लिए भी बोलेंगे कि सब्सक्रिप्शन लो, उसके बाद एड्स आएंगे नहीं। तो बहुत कुछ हो गया। इंस्टाग्राम पे भी आजकल बहुत सारे लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो रील्स बनाते हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो लोग भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स अपने रील्स में इंक्लूड करना शुरू कर दिया, उससे वो लोग अर्न करना शुरू किए। यूट्यूब में भी अगर आप नॉर्मली कुछ फिल्म्स देखो या कुछ भी ऑनगोइंग चल रहा है तो अचानक से ऐड आ जाता है, राइट? हाँ। हाँ। So these are very much important क्योंकि आजकल के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग is a must to do. Without digital marketing, you can't do anything, right? Marketing means to let people know what you are doing, right? या Yeah, so that's how it's going to be. Here also it matters a lot. People will buy feeling कि उसका क्या है. Amul, like I said, it's a very popular brand. It tastes really good. उनकी जो क्वालिटी है वो भी पर्सनली मुझे अच्छी लगती है. So it's a trustable brand that we will buy, right? हाँ। Next, technology advantage. आजकल टेक्नोलॉजी के बिना भी we can't do anything because now we are connecting through online. It's also because of technology. क्योंकि अगर आप 10 साल पीछे जाते होगे तो बहुत रेयरली लोग ऑनलाइन कनेक्ट होते थे, बट आजकल तो ऑनलाइन का जमाना हो गया, स्पेशली कोविड के बाद, राइट? हाँ। Everybody does have a phone or something so that they will do everything in that particular device itself, right? So हाँ। technology plays a major role. The main thing that I will say is banking के sector में Paytm, PhonePe, GPay, these really plays a major role, right? क्योंकि लाइन में खड़ा होके आपको जो एक ट्रांजैक्शन होती थी, किसी को पैसे भेजना है, विड्रॉयल करना है, आजकल पेटीएम, एटीएम कार्ड, इन सभी की वजह से बहुत आसानी से हो जाता है, करेक्ट? एंड ये लोग कैसे पैसे कमाते हैं? वो लोग जो प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं, राइट, हम लोगों से, 2 रुपए हो या कितने सारे लोग हैं, क्योंकि इंडिया का ऑलमोस्ट पॉपुलेशन भी बड़ा है, राइट? तो उस हिसाब से इनकी इनकम भी अच्छी खासी रहती है। और ये हाँ। लोग इतनी फास्ट एंड इतने ट्रस्टेबल है ना पेटीएम, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी किसी से गलती से अगर हम लोगों ने गलती किया है तो जाता है, कभी कभी फॉल्ट होता है, बट these two application और जो भी टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस है, दैट्स वर्क रियली गुड। पेटीएम रख लो, जीपे रख लीजिए, फोन पे रख लीजिए, और भी कितने सारे ऑप्शन दे रहे हैं, नेट बैंकिंग रख लीजिए उस पर्टिकुलर बैंक्स का, इट रियली गोज वेल। आप मोस्टली क्या यूज करते हो अपने लाइफ में फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शंस?
या आपके मम्मी पापा? मैम वो तो गूगल पे यूज करते हैं. करेक्ट, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो हर लाइफ को इजियर बनाने के लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी हमेशा अपने पास रहती है. हाँ. लीडरशिप एंड टीम. If you are an entrepreneur, then you are a leader. Okay, तो आप में वो लीडरशिप ऑलरेडी इनबिल्ड रहती है, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम थिंकिंग का माइंडसेट है, और जितनी अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रास्प करते हो, अपनी वैल्यू क्रिएट करते हो ना, वो आप में ऑलरेडी एक लीडर की खूबियत को बाहर निकाल के रखते हैं. लाइक यू सेड राइट, रिलायंस. रिलायंस इज वेरी बिग इंडस्ट्री. उनका टीम भी बड़ा है, उसकी वजह से उनकी कंपनी भी बहुत मजबूत है, राइट? क्योंकि रिलायंस ऑलमोस्ट आई थिंक ऑल ओवर इंडिया है. Yes. देखो नेक्स्ट, इनोवेशन एंड रेजिलियंस. इनोवेशन रेजिलियंस में ना आपको, वी नीड टू टेक रिस्क. इफ वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, वी नीड टू टेक रिस्क. ओके, एंड Yeah. वी शुड नेवर गिव अप. कभी भी मैं फेल हो गई, मेरे से ये प्रोसेस हो नहीं रहा है, देन वी नीड टू स्टार्ट अगेन. वी शुड नॉट गिव अप एट एनी टाइम. ठीक है ना? लाइक TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कभी सुना है इसके बारे में आपने? हाँ मैम. क्या पता है आपको TCS के बारे में? मैम वो ये इनके ओनर रतन टाटा थे. एंड जैसे टाटा की बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, जैसे टाटा सॉल्ट हो गया, या टाटा मोटर्स के इसका हो गया, एंड और अलग अलग इसका है. वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड. करेक्ट, जितना भी बोला आपने बहुत अच्छा किया है. वेरी गुड, सच में. सो रियली, तो जो रतन टाटा है ना, स्टार्टिंग में वो बहुत स्ट्रगल किए, बट हाँ. ही नेवर गिव्ड अप. बहुत फेलियर आया उनके रास्ते में, बहुत कुछ उनको एंड्योर करना पड़ा, बट ही डिड टेक द रिस्क. उन्होंने रिस्क लिया अपने ऊपर, वापस शुरू किया स्क्रैच से, एंड ही बिल्ड सच अ लार्ज एम्पायर, राइट? हाँ. एंड इसकी वजह से हम लोगों को भी बहुत सारे क्या बोलते हैं, एडवांटेजेस है TCS की वजह से. ठीक है ना? इनकी कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इनके बहुत सारे सेग्रीगेशन है, सिर्फ BPO, MNCs, ऐसे बहुत सारे अदर एक्टिविटीज है दैट्स गोइंग ऑन. लाइक यू सेड, टाटा सॉल्ट, बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने इन्होंने अपनी TCS की वजह से इम्प्लीमेंट किया है. लोगों की लाइफ बहुत ही आसानी से लेके गए हैं ये. हाँ. Next, the main thing that we are here today is junior MBR, right? MBA. तो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, that this is just a demo class, right? Yeah. And for going, we will let you know हमारा जो विजन है ना, कैसे स्टार्टअप क्रिएट करते हैं, बिजनेस का जो मॉडल होता है कि एक्चुअल में रियल लाइफ में कैसे काम होता है, मार्केट में कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे कस्टमर्स को ग्रास्प करते हैं. हम लोगों का वो जो फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब जो मैंने आपको रेवेन्यू स्ट्रैटेजी बताया, राइट? कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कितना कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करना है, पिचिंग अगर आगे जाती है तो हम लोग कैसे उसको मेंटेन करें, बिजनेस टॉप पे जाते तो कैसे उसको रखें, अगर लो जाते तो वापस कैसे हाई पे लेके जाए. ये सब हम लोग आपको इस MBA जो जूनियर सेशन है, इसका ये जो प्रोग्राम है, इसमें हम लोग आपको ये सब बताएंगे. और हमारा यही विजन है कि आपको एक एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योर बनाना, कि कैसे कैसे मॉडल से या किस तरीके से आप सोचो कि आप एक आइडिया इम्प्लीमेंट करो, एंड यू विल लर्न एंड अर्न आल्सो. ठीक है ना? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका जो मैंने आपको बताया कि ये क्या बोलते, अर्निंग करना, रेवेन्यू स्ट्रेटजी प्लान करना या फिर क्रिएट करना, मार्केट रिसर्च करना. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी विल आल्सो टीच यू डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन public speaking, क्योंकि mostly some people fear, right, to talk between thousands of people on the stage or somewhere जहाँ पे 1000 लोग हो. हम लोग कभी कभी डरते हैं खुद को रिप्रेजेंट करने में, बट वी विल टीच यू हाउ टू ओवरकम इट. ठीक है ना? Yeah. अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, अपने आप को, जैसे मैंने बोला, राइट, यूनिक वैल्यू. आप अपने आप को, अपनी यूनिकनेस बताओ सभी को कि आप क्या हो. वो सब हम आपको गाइड करेंगे आगे की क्लासेस में. ठीक है ना? एंड फ्यूचर बिलोंग्स टू, obviously, I think you will be really a very good problem solver.
हमें लगता है कि आप क्रिएटिव भी बनोगे, इनोवेटर भी बनोगे और एंटरप्रेन्योर भी बनोगे. Because I have seen you in this class, you are doing really well. आपको बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है and you are going to rock it. Thank you, ma'am. That's how today's class is. And please let me know if you're having any questions. We will go now for the question and round session. अभी कोई बेस्ट क्वेश्चन है आपको जितना हम लोगों ने अभी तक की सेशन में देखा है? नहीं मैम, अभी नहीं है. कोई डाउट्स नहीं है तो एक छोटी सी रिविजन कर ले हम लोग, क्या देखा है हमने अभी की क्लास तक और जो Sure. आज है वो क्लास है. तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा, बिजनेस क्या होते हैं वो हाँ. देखा, राइट. उसके बाद में उनका जो पूरा स्ट्रैटेजी है वो देखा हम लोगों ने, लाइक अपॉर्चुनिटी थिंकिंग, कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करें, मार्केट की साइज कितनी होनी चाहिए, जैसे जितने कस्टमर्स होंगे उतना हमारा फायदा होगा, राइट. अपने आप को कैसे यूनिक प्रेजेंट करना है, उनकी वो प्रोडक्ट की यूनिक वैल्यू क्या है. उसके बाद रेवेन्यू स्ट्रैटेजी, कैसे हम लोग कमा सकते हैं. ऑब्वियसली बिजनेस कर रहे हैं तो वी नीड मनी, राइट. हम लोग ऐसे ही तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, राइट. वी नीड समथिंग आउट ऑफ इट, करेक्ट. सो वो सब. एंड देन ब्रांड पावर. Brand power doesn't mean logo, it does mean trust and emotion. For you it's Lenskart, for me it's Specs Makers, right? Yeah. That's how it is. And digital marketing, so with this help of digital marketing we will do a lot in business, because aajkal without online digitalization nothing will happen, right. तो उन सभी बातों को भी हम लोग यहाँ पे आपको ध्यान रखेंगे. फिर टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपने आप को, लाइक आपके पास ऑलरेडी आइडिया है, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो यू आर ऑलरेडी अ लीडर. you will Yeah. be having a team members who you need to lead, right, so that it will go smoothly. तो उन सभी बातों का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. फिर इनोवेशन, उसके बाद रेजिलियंस आता है. सो ये सभी एक स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से बिजनेस एक लॉन्ग पाथ में जाता है, ठीक है ना. And Yes. I really hope that we will see in future and we will be having a very good rapport, because I really enjoyed this class with you. Yeah, me too, ma'am. And do let me know if you're having any question, because trust me, I will be your friend, I am your buddy, okay. I'm not your teacher, ठीक है ना. So if you're having any doubt just let me know, I will just guide you through it. And just in case अगर मुझे नहीं पता चला, मैं जाऊंगी, रिसर्च करूंगी, आपके लिए आंसर ढूंढूंगी and I will get back to you. Thank you very much, ma'am. चलो, तो you really don't have any question? No, ma'am, no. No? चलो कोई बात नहीं. अभी आप 10th में गए हो. I wish you best of luck. Do your good and never give up. ठीक है ना? हाँ. चलो, bye bye. Thank you, ma'am. Take Bye, care. ma'am.